بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہسپتالوں میں سال 2022 کیسا رہا؟ کون سے منصوبے شروع کیے گئے، کتنے مکمل ہوئے اور کتنے ادھورے ہیں؟ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ماتحت ٹیچنگ ہسپتال، الائڈ ڈی ایچ کیو، جلس باغ غلام محمد آباد، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، مگر سال 2022 میں ڈینٹل کالج اور ہسپتال ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 120 بیڈ کا اضافہ، جلس باغ غلام آباد میں ایمرجنسی وارڈ کی توسیع اور چلڈرن ہسپتال میں تقریباً 800 سے زائد بیڈ کے اضافے کا PC-1 ہی منظور نہ ہو سکا ہے۔ تاہم 2022 میں بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر فعال ہوا تو میڈیکل یونیورسٹی نے BS پروگرام شروع کروائے۔ مخیر حضرات کی جانب سے تعمیر ہونے والے لانگ سٹے وارڈ میں ڈیالسس یونٹ منتقل ہوا۔ اس پر وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ آنکالوجی وارڈ جو ہے اس کے اندر ہم نے بہتری لائے ہیں، بیڈز انکریز کیے ہیں، کیمو تھراپی وہاں پہ تمام مریضوں کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ صحت سہولت پروگرام میں ہم نے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہسپتالوں میں بیڈ کی توسیع کے لیے عمارتوں کی تعمیر اور وہاں مشینری فراہم کرنے کے لیے 7 بڑے منصوبے چل رہے ہیں، جس میں جلس باغ سمن آباد حسیب شہید کالونی ہسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمندری، تاندلیالہ چک جمرہ اور جڑاں والا تحصیل شامل ہے۔ مگر بدقسمتی سے عرصہ دراز سے شروع ہونے والے بڑے منصوبے، جس میں جلس باغ سمن آباد حسیب شہید کالونی، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چک جمرہ کے تعمیراتی کام ہی مکمل نہ کیے جا سکے۔ اسی طرح تاندلیاں والا سمندری اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھڑیاں والا کو مشینری اور بیڈز کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاں والا کی توسیع کے لیے فنڈز فراہم نہ ہو سکے۔ رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں توسیع کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 بنیادی مراکز صحت کے اوقات کار 6 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے کیے گئے، جس سے دیہی آبادی کے مکینوں کو ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت علاج کی سہولت میسر آ سکے گی۔ اس والے سے CUL ڈاکٹر کاشف محمود کمبوک کا کہنا ہے کہ تمام منصوبوں پر 95% کام مکمل ہو چکا ہے، مشینری خریدنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ منصوبہ جات ہیں وہ آلموسٹ 95% مکمل ہیں اور وہ ان قریب فنکشنل ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑا منصوبہ جو ہے سمن آباد جنرل ہاسپٹل کا ہے، جو 250 بیڈ پہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حسیب شہید ہاسپٹل وہ بھی ہمارا مکمل ہے، اور ہم نے اپ گریڈیشن کی ہے THQ ہاسپٹل تاندلیاں والا کی، THQ ہاسپٹل جمرہ کی۔ 2014 اور 2016 میں صحت سہولت سے منتلک شروع کیے گئے منصوبوں نے 2 سال میں مکمل ہونا تھا۔ سال 2022 تو اختتام پذیر ہو گیا، مگر حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے صحت سہولت کے بڑے منصوبے بدقسمتی سے مکمل نہ ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سال 2023 میں کیا یہ منصوبے مکمل ہو سکیں گے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبداللہ حسین، فیصل آباد۔ رواں برس مویشیوں کے حوالے سے خاصا نقصان دہ رہا۔ لمپی اسکن کی وجہ سے گوشت اور دودھ کی پیداوار اور فروخت شدید متاثر ہوئی۔ دوسری جانب کھل بنولا کی بڑھتی قیمتوں نے مویشی پالنا بھی مہنگا بنا دیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ لمپی اسکن نے فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں گوشت اور دودھ کی پیداوار اور فروخت کو متاثر کیا ہے۔ مویشیوں کو پالنا مہنگا ہو گیا، دودھ کی قیمتیں اس طرح سے نہیں بڑھی ہیں۔ کسان کے لیے دودھ فروخت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کسان کے لیے دودھ فروخت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کھاد جو ہے وہ دینداروں کو اویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ ریٹ پر، جس سے فصلیں مطلب وہ خاطر خواہ فصلوں کا جو وہ گروتھ نہیں ہو سکی، جس سے مویشیوں کے لیے بھی جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ریلیف فراہم کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ لائف اسٹاک حکام کا موقف ہے کہ لمپی اسکن کی وجہ سے مویشی متاثر ہوئے ہیں، مگر ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ کسانوں کے ساتھ مل کر مویشیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو نیا جانور آ رہے ہیں اور جو چھوٹے جانور ہیں ان میں ویکسین وغیرہ جہاں پر محکمانہ ہدایات آ رہی ہیں ہم لگا رہے ہیں، اور مکمل طور پر محکمہ اس بارے میں ویجیلنٹ ہے۔ اگر لمپی اسکن ڈیزیز کا کوئی بھی کیس آئے تو اس کو بڑی ایمرجنسی ڈیل کیا جاتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مویشیوں کے نقصان کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں جانوروں کی قلت شدید ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جب تک ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا تب تک دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بہتری نہیں آئے گی۔ مویشی پالنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے مویشیوں کو بیماریوں سے بچایا جائے تو اچھا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں دودھ کی قیمت بڑھانے کی اجازت بھی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ کیمرامین وحید احمد کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی سے فیصل آباد پریس کلب کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ صحافی کالونی کے قیام کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد کی پرائم لوکیشن پر 190 کنال اراضی صحافی کالونی کے لیے مختص۔ وفد میں صدر پریس کلب شاہد علی، سینئر صحافی سید خاور عباس، سیکرٹری عزادار آبدی اور ممبر اور کالم نگار رانا اقبال حسین شامل تھے۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی،
प्रेस सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब इकबाल चौधरी और DGP आर राव परवेज अख्तर भी मौजूद थे। वजीर आला पंजाब का इस मौका पर कहना था कि काबीना सहाफ़ी कॉलोनी के लिए मुख्तसर अराज़ी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के नाम ट्रांसफर करने और 25 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे चुकी है। और अब आपको बताएं, झंग में साल 2022 में भी 28 अरब के मेगा प्रोजेक्ट से एक भी बड़ा मंसूबा मुकम्मल न हो सका। सड़कों के बड़े मंसूबे तकमील के मुंतज़िर रहे। 16 अरब रुपए की लागत से तरीमू बैराज की तौसी का मंसूबा 2022 में भी नामुकम्मल रहा। 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भक्का रोड, 8 करोड़ से ज्यादा लागत से बनने वाला सरगोदा रोड का मंसूबा नामुकम्मल रहा। 7 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज चंद भरवाना का काम मुकम्मल न हो सका। 4 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज हवेली बहादुर शाह मुकम्मल न हो सका। 11 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन में BS ब्लॉक का काम मुकम्मल न हो सका। 24 लाख रुपए की लागत से 18 हजारी और गढ़ महाराजा कॉलेजेस में BS ब्लॉक्स नामुकम्मल रहा। 13 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी के BS ब्लॉक्स का काम भी नामुकम्मल रहा। 1 करोड़ रुपए से झंग में ज़ेर तामीर स्विमिंग पूल नामुकम्मल। तहसील शोरकोट के बुनियादी मरकज सेहत और अहमदपुर सियाल में जच्चा बच्चा वार्ड नामुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुलाम नबी ब्लॉक की तामीर 12 साल बाद भी नामुकम्मल रही। 4 करोड़ रुपए से जायद मार्केट की तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झंग की तामीर का काम भी शुरू न हो सका। 29 करोड़ रुपए के रेस्क्यू के दफ्तर की तामीर का काम भी शुरू न हो सका। 1 अरब रुपए से जायद लागत की पेंसरा झंग शोरकोट रूट की तामीर का काम शुरू न हो सका। 2 अरब रुपए की लागत के झंग शोरकोट कबीरवाला रोड की तामीर का काम भी शुरू न हो सका। 2 अरब रुपए से जायद के खुशाब झंग मुजफ्फरगढ़ रोड का काम शुरू न हो सका। 14 करोड़ रुपए से झंग फैसलाबाद रोड, 10 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनवाला रोड की तामीर का काम शुरू न हो सका। 10 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड नंबर 1 से 40 तक के रोड्स की तामीर का काम शुरू न हो सका। 9 करोड़ रुपए की लागत से कोट उमर दराज रोड की तामीर का काम शुरू न हो सका। 25 करोड़ रुपए से लारी अड्डे की तामीर के लिए मंजूरी भी न मिल सकी। दूसरी जानिब टोबाटेक सिंह के शहरियों के लिए नए साल की आमद पर खुशखबरी। 15 साल से टूट फूट का शिकार 18 हजारी और मलवाना मोड़ को मिलाने वाले अकाल रोड की तामीर शुरू हो गई। MPA सईद अहमद सईदी और चौधरी मोहम्मद अशफाक ने इफ्तिताह किया। सईद अहमद सईदी का कहना था कि अकाल रोड की तामीर पर 50 करोड़ खर्च होंगे। 9 किलोमीटर तवील सड़क 2024 के आखिर तक मुकम्मल कर दी जाएगी। चौधरी इशफाक का कहना था कि अकाल वाला रोड की चौड़ाई 28 फुट होगी। सड़क की तामीर से 18 हजारी मलहुआना मोड़ तक का सफर आसान हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी और डॉलर की मुसलसल ऊंची परवाज जारी। डॉलर की कीमत जनवरी 2022 में क्या थी और आज किस कीमत पर ट्रेड कर रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। साल 2022 में डॉलर बेलगाम रहा, जिसके नतीजे में कपड़े, धागे समेत अशिया खुर्दनोश की तरसीलात की पैदावारी लागत भी बढ़ गई। सनतों के गढ़ फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने बताया कि एक साल के दौरान डॉलर ने 70 रुपए की रिकॉर्ड छलांग लगाई, जिसने पैदावारी लागत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। जो एक मजदूर साइकिल के ऊपर जाने वाला है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉलर प्राइस की डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वो हिट होता है। और मेरे ख्याल में कि डॉलर को मेंटेन करने के लिए इस टाइम पे पाकिस्तान के पास वाहिद हल है कि हम किस तरह डॉलर जनरेट कर सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर जनवरी में 170 रुपए का था, जो कि आज 225 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की बढ़ती कदर रोकने के लिए मरकजी बैंक ने डॉलर खरीदारी पर पाबंदियां भी आयद की। कमर्शियल बैंकों को जुर्माने किए, डॉलर खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड और दीगर शराइत भी लागू की, मगर डॉलर को ब्रेक ना लगी। डॉलर जो है एक साल में पूरे में तकरीबन 75 रुपए के करीब जो है डॉलर बढ़ा है, और डॉलर का 75 रुपए इजाफा जो है वो हमारी इंडस्ट्री और कारोबार के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। डॉलर के तगड़े होने और रुपए के कमजोर होने की बड़ी वजह आलमी महंगाई के साथ साथ मुल्क में जारी रहने वाली सियासी रस्साकशी भी है। मुल्क में डॉलर की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमत इम्पोर्ट को मुकम्मल बंद करने पर मजबूर हो चुकी है। इन हालात में भी पुरउम्मीद ताजर बरादरी अच्छे वक्त की मुंतजर अपने कारोबार को घसीटे हुए है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, अजनास, दालों, पोल्ट्री और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों के हवाले से साल 2022 कैसा रहा, कौन सी अशिया खुरनोश कितनी महंगी हुई।
आम आदमी की क़ुव्वत खरीद इसके नतीजे में किस हद तक मुतासिर हुई, जानिए इस रिपोर्ट में। साल 2022 को महंगाई का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत, डॉलर और बिजली गैस की कीमतें बढ़ी तो इसके मनफी असरात रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश पर भी पड़े। घी ऑयल जो कि साल के शुरुआत में 400 रुपए फी किलो था, आज 600 रुपए तक पहुंच चुका है। 12 माह में मुख्तलिफ दालों की कीमतें 30% से 35% बढ़ी हैं। अंडे माह जनवरी 2022 में 165 रुपए फी दर्जन थे, जो कि इसी साल के इख्तिताम पर 300 रुपए फी दर्जन पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह मुर्गी का गोश्त 265 रुपए से 470 रुपए तक पहुंच गया। रेट्स की तो बहुत दूर की बात है, आने वाले दिनों में पोल्ट्री जो है ये अवेलेबल नहीं होगी, ना चिकन ना अंडे, और ये इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी सस्टेनेबिलिटी का जो है वो इशू बन रहा है, और इंडस्ट्री जो है इस वक्त तबाही के मुकम्मल दहाने पे है। पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए होनी चाहिए, जो कि आज भी 15,000 रुपए पर 2 साल से रुकी हुई है। ऐसे में अखराजात आमदनी से कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। क़ुव्वत खरीद आप पूछ रहे हैं, हमारे पास क़ुव्वत खरीद है ही नहीं है। हमने इस साल ना कोई अपना सूट लिया, ना बच्चों की कुछ चीज़ें ली हैं, क्योंकि बाजार में जाएं तो चीज़ें इतनी महंगी हमारी वो क़ुव्वत से बाहर हैं खरीदने के। चीनी की कीमत साल की शुरुआत में 70 रुपए फी किलो थी, साल के इख्तिताम में 95 रुपए फी किलो हो चुकी है। अशिया खुर्दनोश के कारोबार से वाबस्ता हजरात का कहना है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। अगर अशिया ही मार्केट में दस्तयाब ना हुई तो क़ुव्वत खरीद होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर की वजह से और फ्रेट बढ़ने की वजह से और एलसियां ना खुलने की वजह से इस वक्त कोई भी दाल जो है हमारी वो 250 240 से कम नहीं है। अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो हो सकता है कि हम लोग पैसे हाथ में लेकर फिरते रहें और चीजों की अवेलेबिलिटी का इशू बन जाए। मजमूई तौर पर साल 2022 आम आदमी के लिए महंगाई का साल रहा है। आम आदमी आज भी हुकूमत से सब्सिडी की अपील करता दिखाई दे रहा है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब माली साल 2022 में कारोबारी सूरत हाल में तो मंदी का रुझान रहा, ताहम फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स वसूलियों में 7 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 50,000 नए टैक्स गुजार भी FPR के पास रजिस्टर हुए। टैक्स आमदन के हवाले से माली साल 2022 कैसा रहा, तफसीलात बता रहे हैं उमैर अजमत अपनी इस रिपोर्ट में। FPR ने माली साल 2022 के पहले 6 महीनों में 31 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूलियां की। इनकम टैक्स वसूली 39% इजाफे से 20 अरब रुपए रही, जो गुज़श्ता वर्ष इसी अरसे में 14,164 मिलियन रुपए थी। सेल्स टैक्स वसूलियां 9,890 मिलियन रुपए से बढ़कर 11 अरब रुपए हो गईं। हमने जो ओवरऑल ग्रोथ अचीव की है 5 महीनों में इस साल जो माली साल के, वो 28% से ज़्यादा है, और पिछले साल 5 महीनों के अंदर हमने 24 अरब के टैक्स कलेक्ट किए थे, जबकि इस दफ़ा ये 31 अरब से ज़ायद की कलेक्शन हो चुकी है। FBR के इरादो शुमार के मुताबिक टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में भी गुज़श्ता साल के मुकाबले इजाफा हुआ और डिवीजन भर में रिफंड्स की मद में 18 अरब रुपए अदायगियां की गईं। चीफ कमिश्नर FBR महमूद हुसैन जाफरी के मुताबिक 50,000 नए लोग टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए, जिसके बाद NTN होल्डर्स की तादाद रिकॉर्ड सतह पर 6 लाख से तजावुज कर गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद भी 2.5 लाख से बढ़ चुकी है। 50,000 से जायद नए टैक्स गुजारों ने इस दफ़ा रिटर्न हमें दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है एक साल के लिए। अभी तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो हमारी रिटर्न आई है, और मज़ीद भी अभी आ रही हैं, तो 50,000 वो लोग हैं जिन्होंने पहले कभी रिटर्न नहीं दी थी। टैक्स चोरी रोकने के लिए सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्ट्रेशन के लिए फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर का मुल्क भर में 3रा नंबर रहा। मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में माली साल 2022 के दौरान टैक्स अदायगियों में 28% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया और गुज़श्ता साल के 24 अरब रुपए के मुकाबले में 31 अरब रुपए FBR को टैक्स वसूल हुआ, जबकि टैक्स गुजारों को 18 अरब रुपए की रिफंड की मद में अदायगियां हुई। 50,000 नए लोग सिस्टम का हिस्सा बने। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2022 तालीमी इदारों की डेवलपमेंट और नए इदारों के क़याम के हवाले से मायूस कुन रहा। फैसलाबाद में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और समंदरी में GC यूनिवर्सिटी कैंपस की शक्ल में 2 इदारों का इजाफा हुआ, मगर कोई नया स्कूल ना बना और ना ही कॉलेज बन सका।
हुकूमती दावों के बरक्स तालीमी सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए तवज्जो और फंड्स की कमी का सामना रहा। साल 2022 में एक भी नया सरकारी स्कूल बना और न ही फैसलाबाद के तलबा के लिए कोई नया कॉलेज कायम किया जा सका। मैट्रिक करने वाले 40,000 से जायद तलबा इंटरमीडिएट में दाखिलों से महरूम रहे। इस सूरत हाल पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हबीबुर रहमान कहते हैं कि साल 2021 में सरकारी कॉलेजेस में 1,34,000 तलबा दाखिल हुए, जबकि साल 2022 में 3,000 इजाफे के साथ 1,37,000 तलबा का दाखिला हुआ। उन्होंने साल 2023 में 3 नए कॉलेजेस के क़याम की नवीद भी सुनाई। मुझे कभी उम्मीद है कि अगले 2 सालों में हम दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटी में होंगे, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ की और अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। फैसलाबाद में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और समुंदरी में जीसी यूनिवर्सिटी कैंपस की शक्ल में 2 हायर एजुकेशन के इदारों का इजाफा हुआ। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद कमाल का कहना था कि साल 2022 में जीसी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पंजाब में पहले नंबर पर आ गई, जबकि मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करवाए। फैसलाबाद डिवीजन में तकरीबन 90 के करीब कॉलेजेस ऑपरेशनल हैं, जिसमें ज़िला फैसलाबाद है, ज़िला चनियोट है, ज़िला जंग है और ज़िला जो है टोबा टेक सिंह है। फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों की तादाद 2,212 है, जबकि जिला के 50 कॉलेजेस समेत डिवीजन भर में सिर्फ 98 सरकारी कॉलेजेस हैं, जिसके बायस 40% से ज्यादा तलबा मैट्रिक के बाद तालीम से महरूम रह जाते हैं। ऐसे में हुकूमत को मजीद तालीमी इदारे कायम करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंग के इलाके थाना सदर में जवां साल लड़की कत्ल कर दी गई। कत्ल के इल्जाम में वालिद बाबर अली और भाई जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। कच्ची नहर 18 हजारी से मकतूला की लाश की तलाश जारी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन असगर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारोबार में झूठ की हौसला शिकनी के लिए एथिकल प्रो के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। फाउंडर एथिकल प्रो हामिद महमूद, आईटी प्रोटेक्शन से मुंसलिक माहिरीन समेत उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को पेश आने वाले खतरात और मुमकिन मसाइल के हल पर गुफ्तगू की गई। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम इंटर क्लब बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इवेंट में 8 टीमों की शिरकत। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रजिस्टर्ड क्लबों को मदऊ किया गया। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि ऐसे इवेंट करवाने का मकसद बास्केटबॉल को फरोग देना है। बास्केटबॉल चैंपियनशिप के मजीद मैचेस कल होंगे। मैचेस में 2 सेमीफाइनल होंगे और पीर के रोज फाइनल होगा। जीतने वाली टीम को कैश इनामात और ट्रॉफी दी जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।